Assalamu alaikum, students. Now we are taking the second part of this vector product which is vector product in Cartesian components. In fact, I had already done it once, and but it could not be saved because of electric breakdown. So things are written. I will only make them understandable to you. And so we have vector product in Cartesian components. Vector A is written in components as xi, ayj, azk, and vector B is written in Cartesian components as bxi, byj, b plus bzk. So these are component form vectors in component form. Then how we can write now A cross B in this situation? So we write A cross B is, so this is vector A, and this is B. For A we write A in component form as it is here, AXI, AYJ, AZK. For B it is a vector product here, BXI, BYJ, BZK. तो अब हमें क्या करना है कि AXI जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से AXI क्रॉस इन तीनों के साथ लगेगा. सो AXI, BXI it will become AX BXI cross I. इस तरह AXI BYJ will become AX BY I cross J. इस तरह AXI with BZK will become AX BZ I cross K. अब जो इसमें दूसरा हमारा है AYJ will be taken cross product with all these components. It will become AY BX J cross I. AY BX J cross I, and then AY BY J cross J is second term, then AY BZ J cross K is the third term here. Now ये तीसरा जो यहाँ का कंपोनेंट है इस A वेक्टर का AZK को हम ऑपरेट करेंगे इन तीनों पे, and we will have AZK BXI will become AZBX K cross I, then AZK with BYJ will become AZBY K cross J, and then AZK with BZK will become AZBZ K cross K. So we have 9 terms here. 9 terms हमारे पास हैं. इनमें से अब हमें पता है I cross I, J cross J, what is their value we know. Using I cross I, J cross J and K cross K as we have seen already, they are all 0. इनका इस्तेमाल होगा. इसके हिसाब से ये टर्म खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी. And then we will use for I cross J is K and J cross K is I and K cross I is J. और इनके जो अपोजिट में है J cross I that is minus K, K cross J is minus I, and we have I cross K is equal to minus J. Now जब हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे, now when we use it here, when we use here, what we can write is it will become ऊपर वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 जो है A क्रॉस B, अब ये क्या बनेगी जब हम इन वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे. we get A क्रॉस B equals, ये टर्म खत्म हुई, AX BY I क्रॉस J, नीचे आप देखेंगे ये K के बराबर है, प्लस ये टर्म AX BZ I क्रॉस K आप देखेंगे यहाँ पे ये है I क्रॉस K माइनस J के बराबर. इसी तरह दूसरी लाइन में यहाँ पे AY BX ये वाली टर्म J क्रॉस I is minus K, and then ये टर्म खत्म हो गई यहाँ पे AY BZ J क्रॉस K is I. फिर हम तीसरी लाइन में आते हैं यहाँ AZBX K cross I is J, and then this term AZBY
k क्रॉस j is minus I. We must have 6 terms. I के लिए 2 होनी चाहिए, एक प्लस और एक माइनस, j के लिए भी 2 हैं, एक प्लस और एक माइनस, और k के लिए भी 2 हैं, एक प्लस एंड एक माइनस. इनको आपस में हम अगर जोड़ेंगे, we can write it as, so we'll have this vector a cross b equal to, so I will have vector a cross b now equal to, this is the result now. It is first I component, so write a y b z, a y b z minus a z b y I. तो ये I वाले हमारे आ गए यहाँ पे, a y b z एंड a z b y. अब J वाले हम लिखेंगे, तो J वाला हमारे पास ये है a z b x, a z b x माइनस a x b z यूनिट वेक्टर J. तो ये आ गए ये दो, और फाइनली वी राइट फॉर केस हियर ax by और नेगेटिव टर्म माइनस ay bx वेक्टर k. सो ये हमारा a क्रॉस b वेक्टर इसके बराबर है कंपोनेंट फॉर्म में. अगर आपको a वेक्टर की कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जैसे ax ay az, b वेक्टर की कंपोनेंट्स दिए गए हैं bx by bz, तो उस वक्त a क्रॉस b जो है इसके ये 3 कंपोनेंट्स होंगे. ये x कंपोनेंट होगा, ये इसका x कंपोनेंट है, और यहाँ से ये इसका y कंपोनेंट है, और ये जो है z कंपोनेंट है, जिसको हम ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे. सो वी हैव a क्रॉस b इज x कंपोनेंट, यहाँ पे रिटर्न हमने लिखा है अलग से. अब x कंपोनेंट ये वाला है a y b z माइनस a z b y, और a क्रॉस b का जो y कंपोनेंट ये वाला y कंपोनेंट है इसका a z b x माइनस a x b z, यहाँ पे b z, और ये इसका z कंपोनेंट है a क्रॉस b z कंपोनेंट इज a x b y माइनस a y b x, एंड दीज आर कंपोनेंट्स आर स्केलर्स. So these are the components. तो इसको अगर हम चाहें तो इसको हम इन कॉम्पैक्ट और डिटरमिनेंट फॉर्म, ये जो वेक्टर है इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. डिटरमिनेंट फॉर्म का यूज करके हम लिख सकते हैं a क्रॉस b जो है इट इज इक्वल टू i j k, और फिर पहले वेक्टर की कंपोनेंट्स, पहला a वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स ax ay az, फिर b वेक्टर की कंपोनेंट्स bx by bz. इसको अगर हम खोलेंगे विल गेट दिस बैक. से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दिखाते हैं, से i का अगर हम देखेंगे पहला कंपोनेंट x कंपोनेंट, तो इन दो लाइन्स को हमें छोड़ना है, ये और ये लाइन हमें छोड़नी है. बाकी जो बचता है इनको हमें ऐसे आपस में ज़रब देना है क्रॉस करके a y b z माइनस a z b y. इसी तरह जब हम दूसरा देखेंगे j वाला कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट, तो उस वक्त ये लाइन और ये लाइन हमें इग्नोर करनी है, और फिर हम देख सकते हैं कि इन दो का जो है यहाँ से a z b x जो हमने यहाँ लिखा है माइनस a x b z. यहाँ कुछ लोग यहाँ माइनस का यूज करते हैं, फिर यहाँ अंदर ये चेंज करते हैं, मगर उससे बेटर जो है एक सिमेट्रिकल फॉर्म पॉजिटिव हम यूज करें. पहले हमने i यूज किया तो दाईं तरफ हमने शुरू किया a y b z a z b y, फिर हमने j कंपोनेंट के लिए ये हमने छोड़ दिया, फिर इसके राइट साइड में जो है वहां से शुरू करेंगे. इसके राइट साइड में ये आता है a z, तो हम a z b x माइनस a x b z लिखेंगे. या दूसरा तरीका है, अगर आप यहाँ माइनस लाना चाहते हैं, जो कुछ लोग यहाँ माइनस लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं फिर यहाँ से शुरू करते हैं, फिर आप लिखेंगे एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, अल्टीमेट रिजल्ट विल बी सेम. एंड फिर अगर आप तीसरा इसका निकालना चाहेंगे
तो इसमें आप से तीसरा जो है के वाला कंपोनेंट, तो ये आप इग्नोर करेंगे और ये वाली लाइन भी इग्नोर करेंगे। इसके आगे राइट में आप आएंगे तो आप यहाँ पहुंचेंगे, तो आप यहाँ से ए एक्स बी वाई यहाँ और ए वाई बी एक्स ऐसे, तो आपको तीसरा कंपोनेंट मिलेगा। सो दिस इज इन द कंपोनेंट फॉर्म, ये आपका इसका डिटरमिनेंट और कंपोनेंट फॉर्म है। So this is it. Now we can write another thing, that is will show the condition for two vectors to be polar or antipolar. हम कैसे निकालें, कैसे देखें कि दो वेक्टर्स जो हैं दिए गए हैं कंपोनेंट फॉर्म में कि वे पलर हैं, एंटी पलर हैं कि नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अगर इफ और थीटा का 0 या पाई है, ये ओब्लिक मतलब है, या थीटा 0 या पाई है, वही सिचुएशन है। थीटा 0 मीन्स वेक्टर्स आर पलर, थीटा पाई मीन्स वेक्टर्स आर एंटी पलर। तो उस केस में साइन थीटा जो है वो 0 हो जाएगा और ए क्रॉस बी भी 0 होगा। अब कंपोनेंट फॉर्म में इसका मतलब क्या है, अगर ए क्रॉस बी 0 है तो कंपोनेंट फॉर्म में ए क्रॉस बी हमने अभी देखा, इट इज रिटन लाइक दिस, ए वाई बी जेड मीन्स ए जेड बी वाई आई प्लस ए जेड बी एक्स मीन्स ए एक्स बी जेड जे प्लस ए एक्स बी वाई मीन्स ए वाई बी एक्स के इज इक्वल टू 0। सो इफ vectors are polar or antipolar, then this equation will hold, which is vector in component a cross b in component form will be 0। अब चूंकि ij के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ij वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये इक्वेशन अगर 0 के बराबर है उसके लिए जरूरी है कि इसके तीनों कंपोनेंट्स 0 हों। अगर तीन वेक्टर्स परपेंडिकुलर ना हो, इफ दे आर इन रैंडम डायरेक्शन, तब ये पॉसिबल है कि, तब ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों कंपोनेंट 0 हों। देन द थ्री कंपोनेंट्स कैन कंबाइन टू मेक इट ए 0 वेक्टर। तो मगर अगर तीन वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इसके लिए जरूरी है कि ये कंपोनेंट्स इंडिविजुअली 0 हो जाएं। उसका मतलब ये है कि ए वाई बी जेड मीन्स ए जेड बी वाई इज इक्वल टू 0, आल्सो ए जेड बी एक्स मीन्स ए एक्स बी जेड मस्ट बी आल्सो 0, एंड आल्सो मस्ट हैव ए एक्स बी वाई मीन्स ए वाई बी एक्स मस्ट बी आल्सो 0। इसको अगर हम फिर इक्वेशन फॉर्म दें तो इसको माइनस टर्म को यहां ले लें, इट विल बिकम ए वाई बी जेड इज इक्वल टू ए जेड बी वाई, ए जेड बी एक्स इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू ए एक्स बी जेड। इनको शिफ्ट करके यहाँ पे राइट साइड में ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू ए वाई बी एक्स। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं, अगर हम ये जेड वाली ए वाली टर्म यहाँ लाएंगे इसके साथ और जेड वाली टर्म यहाँ लाएंगे, सो इट विल बिकम ए वाई बी एक्स ए वाई बाई बी वाई इज इक्वल टू, सॉरी हाँ नहीं ऐसा नहीं करना, हमें ए वाई के साथ बी वाई हमें जोड़ना है। जस्ट a minute, I will, so what we'll do is so ay divided by by is equal to az divided by bz। तो ये तो सीधी सी इक्वेशन है। इसी तरह ये इक्वेशन यहाँ पे आ जाती है हमारी, ए वाई बाई बी वाई इज इक्वल टू ए जेड बाई बी जेड। यहाँ से हम ए जेड बाई बी जेड इज इक्वल टू ए एक्स बाई बी एक्स, ए एक्स बाई बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाई बी वाई। इन तीन में से हमें ये तीन इक्वेशंस मिलेंगी। इन तीनों को मिला के मतलब ये निकलता है ए एक्स बाई बी एक्स मस्ट बी इक्वल टू ए वाई बाई बी वाई मस्ट बी इक्वल टू ए जेड बाई बी जेड। दिस इज द कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी polar or antipolar। What is the condition for polar? The ratio of corresponding component of vectors must be equal। यानी x कंपोनेंट का रेशियो, a वेक्टर का x कंपोनेंट, b वेक्टर का x कंपोनेंट, मींस रेशियो ऑफ x कंपोनेंट्स, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ y कंपोनेंट, दिस इज द रेशियो ऑफ z कंपोनेंट्स, दे मस्ट बी इक्वल। इफ दिस होल्ड्स ट्रू, अगर ये कंडीशन निकलती है तो इस सिचुएशन में दो वेक्टर्स जो हैं वो पलर होंगे या एंटीपलर होंगे। अब दूसरी जो यहाँ कंपैरिजन के लिए हैं, फॉर कंपैरिजन वी मस्ट आल्सो नो व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन है वो हमें पता है। ए डॉट बी जो है कंपोनेंट फॉर्म में, ए डॉट बी जो है इसके बराबर है ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी सेट। आपको याद रखना है, जिस तरह यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट लास्ट टाइम हमने किया, हाँ कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर प्रोडक्ट ये लंबी इक्वेशन है, ये लंबी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, कंपोनेंट फॉर्म में है।
सॉरी नॉट दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन जो है कंपाउंड फॉर्म है A क्रॉस B की। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की इक्वेशन जो है छोटी है, A क्रॉस B इज इक्वल टू दिस थिंग इन कंपोनेंट फॉर्म। अब इसमें A और B अगर परपेंडिकुलर हैं तो A डॉट B, ए बी क्रॉस थीटा कॉस ऑफ 90 0, तो 0 हो जाता है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। उसका मतलब अगर इसमें डालेंगे उसका मतलब है ax bx ay by az bz is equal to 0. This is a simple condition and this is condition for two vectors to be perpendicular. तो आपके पास अब याद रखने के लिए दो कंडीशंस हैं कि अगर आपको दिखाना है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो आप ये ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने के लिए, सो दिस इज ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने के लिए कंडीशन है। ये कंडीशन जो है ये आपकी पैरेलल और एंटी पैरेलल चेक करने के लिए एक कंडीशन है। फाइनली एक और बात जो आप ऐड कर सकते हैं अपने इस वेक्टर प्रोडक्ट में, यहाँ थोड़ी स्पेस ऐड करते हैं, वो है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वेक्टर प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं जो कि, मैं थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो थोड़ा यहाँ पे इट विल बी लुकिंग बेटर। तो ये है हमारी डायग्राम। तो इसमें अगर ये दो साइड्स जो हैं, अगर ये दो साइड्स इसके वेक्टर्स हम लेंगे A और B, एक पैरेललोग्राम में चार साइड्स होते हैं, इसके दो साइड्स जो हैं वो हम लेते हैं दो वेक्टर्स। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो इसका और दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा है, तो इसका एरिया किसके बराबर होगा। तो हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर है। सिंपली अगर हम पॉइंट्स को नाम दें, से फॉर एग्जांपल P, इस पॉइंट को हम नाम देंगे Q, इस पॉइंट को नाम देंगे R, यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे PQ पर। Let us say it meets at point S. So area पैरेललोग्राम is PQ into RS, जो हमारे पास ज्योमेट्री की फॉर्मूला है, PQ into RS। नाउ RS जो है, अगर हम ट्रायंगल यहाँ परपेंडिकुलर है ये, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज अगर हम यूज करेंगे RS बाय PR, RS अगर थीटा के हिसाब से देखेंगे एंगल अपोजिट में है, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो RS बाय PR वुड बी साइन ऑफ थीटा, विच मीन्स RS वुड बी PR साइन थीटा। नाउ PR जो आपको पता है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर A की लेंथ है, सो इट इज A साइन थीटा। सो PQ जो है और PQ जो है वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है, सो हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू B into A sin theta, which can be combined। अब चूंकि मैग्नीट्यूड्स हैं तो इनको हम चेंज कर सकते हैं, इट इज AB sin theta। व्हाट इज AB sin theta? चूंकि A और B दो वेक्टर्स हैं और थीटा इनके दरमियान स्मॉलर एंगल है, तो AB sin theta जो है इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। सो व्हाट वी गॉट इज एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, area of a parallelogram is equal to magnitude of vector product of two vectors which are its adjacent sides। तो ये A क्रॉस B ये आपको मिलता है एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, जिस पैरेललोग्राम के दो साइड जो हैं वो दो वेक्टर्स हैं, तो दिस एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ A क्रॉस B। So all for this lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.